Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 4A question number 7, and question number 7 is simplify. So students, I told you the concept of simplification in the last video. So in this video we will discuss simplification thoroughly. So A part is 426624 plus 253886 minus 305167. First of all, students, you must add the two plus numbers. So plus numbers are 426624 plus 253886. So we will start from here. 6 plus 4 10, 0 carry 1, 8 plus 1 9 plus 2 11, 1 carry 1, 8 plus 1 7 plus 6 15, 5 carry 1, 6 plus 1 7, 8 9 10, 0 carry 1, 5 plus 1 6 7 8. 8 will come as it is. 4 plus 2 is equal to 6. So after adding you will get answer 680510. Now you will subtract 305167 you will subtract 680510 from 305167. So after subtracting you will get your answer 375343. Subtraction, students, I have told you in the last videos. Okay, so after subtracting you will get your answer. D part, 841250 minus 1236045 plus 689510 minus 45720. So in the first step you will add the minus numbers. So minus numbers are 1236045 and 45720. So after adding you will get your answer 1281765. Second step, you will add the plus numbers. So plus numbers are 841250 plus 689510, 0, 5 plus 1 6, 5 plus 2 7, 9 plus 1 10, 0 carry 1, 8 plus 4 12 plus 1 13, 3 carry 1, 8 plus 1 9 plus 6 15. So you will get your answer 1530760. And in the third step you will subtract 1530760 from 1281765. After subtracting you will get your answer 248995. Now we will discuss 8th question, A part, 4956874 plus 3549283 plus 6138052. First of all, students, you have to arrange the numbers in columns and then you have to add. So you will add like this: 4 plus 3 plus 2 is equal to 9, 7 plus 8 plus 5 20, 0 carry 2, 8 plus 2 10 plus 2 12, 2 carry 1, 6 plus 1 7 plus 9 16 plus 8
24, 4 carry 2, 5 plus 2 7 plus 4 11 plus 3 14, 4 carry 1, 9 plus 1 10 plus 5 15 plus 1 16, 6 carry 1, 4 plus 1 5, 6 7 8, 9 10 11 12 13 14, 14 will come as it is. So your answer is 1464 4209. Okay, now we will discuss E part. In the E part, question is 20 crore 70 20 crore 75 20 crore 75,000 plus 90 lakh. So you will write it down like this: 20 crore 75,000 plus 90 lakhs. So after adding you will get your answer 20 crore 90 lakh 75,000. Now we will discuss ninth question. You have to subtract these numbers: 237851 minus 76955. So you will subtract like this. If you borrow 1 from 7 you will get 6. Here comes 18. If you cut 18 you will get 17. And here comes 15. If you cut 15 you will get 14, and here comes 11. 11 minus 5 is equal to 6. 14 minus 5 is equal to 9. 17 minus 9 is equal to 8. 6 minus 6 is equal to 0. 2. If you cut 2 you will borrow 1 from 2. You will cut 2 like this, and you will write it down here 1, and here comes 13. 13 minus 7 is equal to 6, and 1 will come as it is. So in this way you will subtract the numbers 160896. Now we will discuss C part. In the C part, 5296010 minus 8438215. After subtracting you will get your answer 44521795. सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है. इसके बाद ई पार्ट में 90807060 माइनस 60958273. 90807060 माइनस 60958273. You will get your answer 29848787. Now question number 10. In question number 10 we will discuss B part. One two four five minus 847521 plus 1245000 minus 307583. So first of all you will simplify the minus numbers, then you will add plus numbers. And in the third step you will subtract the numbers. So first step is you have to add minus numbers. So minus numbers are 847521
plus 307,583. After adding, you will get 1155,104. Then you will add the plus numbers 1245,000 plus 1245. You will get your answer 1246,245. So how to add this? 0 plus 5 is equal to 5, 0 plus 4 is equal to 4, 0 plus 2 is equal to 2, 5 plus 1 6, 4 will come as it is, 2 will come as it is, 1 will come as it is. So 1246,245 is your answer. After that you will subtract 1246,245 from 1155,104. So after subtracting you will get your answer 91141. It is your answer. So in this way your exercise 4A is completed. Now we will discuss exercise 4B. So students, exercise 4B के अंदर word problems discuss करेंगे. So first question is the sum of 348750 and a number is 150000. So 15 5 times 0. Find the number. So solution is, let the number be x. 348750 plus x, because here it is written, यहाँ पर ये लिखा है कि जो नंबर है और ये जो नंबर दे रखा है 348750, इनका जो सम है वो किसके बराबर है? 150000 के बराबर. तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे 3,48,750 प्लस x इज इक्वल टू 15 lakhs. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 15 lakhs माइनस 3,48,750. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 11,51,250. सो द अदर नंबर इज़ 11,51,250. स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. 15 lakhs माइनस 3,48,750 आपका आंसर आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको पहले बता ही रखा है. तो आपका आंसर आएगा 11,51,250. सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 2,11,265. The bigger number is 50,02,000. Find the smaller number. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर का 2,11,265 और आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है 50,02,000 और छोटा नंबर आपसे पूछा है. तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना आएगा? 2,11,265. बड़ा नंबर आपका क्या आएगा? 50,02,000. स्मॉलर नंबर आपको क्या मानना पड़ेगा? x. तो बड़े नंबर में से जब आप स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस 2,11,265. तो यहाँ पर आपको स्टेप में लिखना पड़ेगा 50,02,000 माइनस x इज इक्वल टू 2,11,265. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 50,02,000 माइनस 2,11,265. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा? 47,90,735. स्मॉलर नंबर आपका ये आएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आप खुद से करिए. अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा.
अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3,25,066. If the smaller number is 98,437, find the larger one. Difference of two numbers is equal to 3,25,066. Smaller number is 98,437. Let the larger number be x. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस दिया हुआ है 3,25,066. तो आप क्या करेंगे, x माइनस 98,437 इज इक्वल टू 3,25,066. फिर x इज इक्वल टू 3,25,066 प्लस 98,437. इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. आफ्टर एडिंग यू विल गेट योर आंसर 4,23,503. ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 6 + 7 इज इक्वल टू 13, 3 कैरी 1, 6 + 1 7 + 3 10, 0 कैरी 1, 4 + 1 5, 8 + 5 13, 3 कैरी 1, 2 + 1 3 + 9 12, 2 कैरी 1, 3 + 1 is equal to 4. So the larger number is 4,23,503. Now we will discuss question number 6. The population of a country was 5,10,37,200 in the year 2000. In the year 2010, the population becomes 5,74,69,450. What was the increase in population? तो स्टूडेंट्स 2000 जो ईयर 2000 था उसके अंदर पॉपुलेशन आपको कंट्री की कितनी दी हुई है, 5,10,37,200. और 2010 जो आपका ईयर है उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन दी हुई है, 5,74,69,450. तो स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितना पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ आ गया. तो 5,64,69,450 माइनस 5,10,37,200. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64,32,250. सो योर आंसर इज़, thus the increase in population is 64,32,250. तो इस तरीके से आप इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे. तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन आप कब निकाल सकते हैं, जब आप जो दोनों ईयर की जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें से कम वाली पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, तभी तो आपको इंक्रीज़ पता लगेगा कि आखिर ये जो पॉपुलेशन है ये कितनी इंक्रीज़ हुई. क्वेश्चन नंबर 7. अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 8,53,760. He spent rupees 15,46,920 to build a house on it. तो घर बनाने के लिए उसने इतने पैसे दिए. आफ्टर दैट ही सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज़ 30 lakhs. उसके बाद उसने उस घर को 30 लाख रुपए में बेचा. हाउ मच मनी डिड ही गेन. आखिर उसने कितनी मनी उसको मिली वापस. तो कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी थी, रुपीज़ 8,53,760. मनी स्पेंट टू बिल्ड अ हाउस. अब उसने कितनी मनी दी उस घर को बेचने के लिए,
या घर बनाने के लिए उसने कितनी मनी दी, उसने दी ₹15,46,920। मनी सोल्ड, हाउस को खरीदने के लिए उसने ₹30 लाख दिए। अब उसके पास कितनी मनी बच गई, दिस इज़ यू हैव टू सॉल्व। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ₹30 लाख माइनस ₹15,46,920 माइनस ₹8,53,760, इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तब आपके पास आंसर आएगा ₹5,99,320। तो इतने रुपए उसको मिले, या इतने रुपए उसने गेन किए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन हैड ₹1 crore. He spent ₹12,60,750 to buy a car, ₹52,53,600 to buy a flat. तो स्टूडेंट्स, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए थे। ही स्पेंट, उसने कितने रुपए दिए, 12,60,750 रुपये उसने दिए टू बाई अ कार, एक कार ख़रीदने के लिए। अब अगर उसे एक फ़्लैट ख़रीदना है तो उसने फ़्लैट को ख़रीदने के लिए कितने रुपए दिए, 52,53,600। अब उस फ्लैट पे उसने फर्निशिंग भी कराई कुछ, तो उसने कितने रुपए उसके दिए, ₹5,68,440। सो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास अब कितने रुपए बच गए, ये आपको निकालना है। तो टोटल मनी कितनी है, 1 करोड़। मनी स्पेंट टू बाई ए कार कितनी, ₹12,60,750। मनी स्पेंट टू बाई ए फ्लैट ₹52,53,600। मनी स्पेंट टू फर्निश अ फ्लैट, फ्लैट को फर्निश कराने के लिए उसने कितने रुपए दिए, ₹5,68,440। मनी लेफ्ट, उसके पास अब कितनी जो मनी है वो बच गई, तो आप क्या करेंगे, वन करोड़ में से आप इन सारी जितनी भी मनी उसने स्पेंड करी है, इन सबको ऐड करने के बाद 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 29,17,210। तो उसके पास अब इतनी मनी रह गई। नाइन्थ क्वेश्चन, स्टेट हैज़ 1,43,34,516 मेल वोटर्स एंड 1,35,87,645 फीमेल वोटर्स। In an election 8,65,079 वोटर्स डिड नॉट वोट। तो इतने वोटर्स ने वोट नहीं किया। इतने आपके पास मेल वोटर्स हैं, इतने आपके पास फीमेल वोटर्स हैं। हाउ मैनी पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, आखिर कितने लोगों ने उस इलेक्शन के अंदर वोट दिया, तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर मेल वोटर कितने हैं, 1,43,34,516। फीमेल वोटर्स कितने हैं, 1,35,87,645। वोटर्स दैट डिड नॉट वोट 8,65,079। पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। तो आप क्या करेंगे, मेल वोटर्स और फीमेल वोटर्स को ऐड कर देंगे, उसमें से जिन
लोगों ने वोट नहीं दिए उस इलेक्शन के अंदर, उसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,70,57,082। तो 2,70,57,082 लोगों ने वोट उस इलेक्शन के अंदर दिए। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4B। Rajat bought a machine for rupees 2,57,89,500 and sold it for rupees 2,75,20,000। रजत ने एक मशीन खरीदी कितने रुपए में? 2,57,79,500 रुपये में, और उसने कितने में बेच दी उसे? 2,75,20,000 इतने रुपए में उसने उसे बेच दी। डिड ही गेन और लूज़ मनी? तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई, ये आपको बताना है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, तो आपको इसमें उसका लाभ और हानि निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है मशीन का? वो है 2,57,89,500। सेलिंग प्राइस कितना है मशीन का? 2,75,20,000। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो रजत को क्या हुआ? गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। ही मेड अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाले केस के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 17,30,500। तो उसको क्या हुआ? गेन हुआ। और उसको गेन कितने रुपए का हुआ? 17,30,500 का उसे गेन हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इनको माइनस भी करके देख सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी एक्सरसाइज 4A एंड 4B कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।